Hello, welcome to the Code Warnings. Okay, difference between SQL and MySQL. Actually, I was wondering and I was surfing that why student generally fails into interviews, right? So वहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर like this question is one of them. Fine. So SQL and MySQL. अभी I was surfing Google Trends and on that I found that one student asked this question, that difference between SQL and MySQL. But before to head into this particular topic, I want to give one human relatable example. Right. So consider SQL as our English language. Right. And consider MySQL as your MS Word. चलो MS Word का मतलब क्या है? MS Word is normal a software, like it's a tool which allows you to write sentence into English language. Are you getting what I'm trying to say? So English is a language and MS Word is a software that allows you to write a sentence into English language. So similarly, structured query language is a language which allows you to frame a sentence for a particular data and we have to store those data. बट ना द क्वेश्चन कम अक्रॉस कि भाई मैंने यहाँ पे एसक्यूएल में क्वेरी तो बना ली, अब मुझे उसको यूज कहाँ करना है, मैं उसको यूज कहाँ करूंगी? तो आता है अपने खेल में MySQL. MySQL क्या है? यू मस्ट नो अबाउट इट. MySQL इज अ डेटाबेस. बट कौन सा डेटाबेस? अभी डेटाबेस कैन बी ऑफ टू टाइप. द वेरी फर्स्ट इज relational database and second one is non-relational database. अभी relational का मतलब क्या और non-relation का मतलब क्या? चलो, relational का मतलब क्या है कि it must follow one schema. अभी what does it mean schema? If you are searching on Google that what do you mean by schema in database management system, तो वो क्या बोलेगा? Schema is a logical structure of a particular database या तो logical representation of a data. हाँ, I know कि भाई वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन? इसका वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे ना तुझे एक स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स दे दिया गया है, उसमें ही तुझे ये एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, उसके ही अंदर तुझे डेटा को मैनिपुलेट करवाना है, डेटा को चेंज करवाना है, ऑल्टर करवाना है, सबका मीनिंग एक ही होता है. हाँ, जो कोई भी ऑपरेशन तुझे करवाना है, जो मुझे स्कीमा डिजाइन किया हुआ है, इसके ऊपर ही तू करेगा या तो करेगी. ठीक है. अब मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि भाई ये स्कीमा का मैम क्या बोलना चाह रहे हो? Let me give you one technical example, right? So you must aware about all the core languages that are available in the market, starting from the C, C++, Java. बहुत सारी languages हैं. These three are majorly used in companies, right? So if I'm taking one example of Java core language, right? तो Java क्या है? Java is based on object-oriented programming language, right? So in that objects are mandatory. If you are not following the data which is followed by the object-oriented programming language or object-based, so you might get some error. So there should be chances to get error into it, right? So although objects are the main important factor to build a Java application और Java program, right? So वो Java तुम लोगों को पहले ही बोल दिया कि अगर तुम लोगों को Java के अंदर काम करना है तो तुम लोगों को ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है. तो सिमिलरली SQL का भी यही काम है कि भाई अगर तुम लोगों को SQL में काम करना है तो तुमको ये पता होना चाहिए भी ऐसे कौन कौन से डेटाबेसेस है जो SQL को सपोर्ट करता है. पता चल रहा है? अभी मैं नॉर्मल से एग्जांपल ले रही हूँ. देखो यहाँ पे मैंने एवरग्रीन एग्जांपल लेते हैं. चलो, स्टूडेंट का टेबल. ठीक है. तो स्टूडेंट का टेबल होगा तो स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी ब्रांच होगी, उसकी सिटी, मतलब क्या क्या नहीं होगा, व्हाट नॉट. मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है. तो ये जो मुझे डेटा मिला, अब मैंने ऐसा बोला कि मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट आईडी है वो स्टूडेंट के सारे डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में क्वेरी क्या लिखूंगी? उसके लिए लिखूंगी कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? या टेबल का नाम है स्टूडेंट. ठीक है. तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट है ना वो फिक्स है, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. अभी इसके अंदर भी पार्ट है, DDL है, DML है, DQL है, DCL है, मैनिपुलेशन, डेफिनेशन, कंट्रोल, है ना, क्वेरी लैंग्वेज, वो सारी अलग अलग चीजें हैं. अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये जो क्वेरी है या ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से डेटाबेस में सपोर्ट करेगा, है ना. तो ये जो बेसिकली डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और MySQL के अंदर, जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो हमें बोलते हैं कि हेल्प करते हैं एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए. अभी मुझे ये देखना है कि मैंने सेंटेंस तो फ्रेम कर लिया,
अभी ये सेंटेंस को मैं यूज कहाँ करूंगी, है ना? तो वो क्या है, अपना MySQL। तो MySQL जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है जो एक पर्टिकुलर स्कीमा को फॉलो करता है, ठीक है? तो वो स्कीमा क्या बोलेगा कि मेरा ना एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है, ऑन दैट वी हैव टू यूज द प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर ओनली। तो अगर तुझे काम करना है तो इसी के ऊपर करना होगा, अदरवाइज तू नहीं कर सकता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इट शुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड ना। तो इसके लिए मैंने प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई एक स्टूडेंट का अगर टेबल है तो स्टूडेंट के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ अगर मेरी कॉलम्स है तो उतनी ही मैं हैंडल कर पाऊंगी। अगर करना है तो मुझे दूसरा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब वहां पे चांसेस हो गए कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेबल्स एंड वी कैन correlate those table with each other with the help of the Illoquant model of the relationship। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? बट वो बात की बात है। But this is the normal difference between SQL and MySQL। So अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो क्या चीज का याद रखो कि भाई देखो, अगर मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे लिखना है, तो अगर मुझे इंग्लिश को लिखना है तो मैं कहाँ पे लिखूँ? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ MS वर्ड का एग्जांपल लूं, यू कैन टेक एनी एग्जांपल यू वांट, ठीक है? अगर मुझे कुछ पता है कि मैं ऐसे बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन बोलने के लिए बोला कि भाई इंट्रोडक्शन तुझे देना है, तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे कि माय नेम इज दिस दिस दिस। तो ये चीज है, बोला ठीक है, लिखना है मुझे, मतलब उसको यूटिलाइज करना है, सिर्फ बोलने से नहीं, मुझे उसको यूटिलाइज करना है। तो वो यूटिलाइज करने के लिए अगर मुझे कुछ लिखना है तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तुम लोगों को लैंग्वेज आती है, तुम लोगों को ऐसा पता है कि कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, पर लैंग्वेज लिखोगे कहाँ, ठीक है? अगर तुम लोगों को अगर स्प्रिंग बूट पे काम करना है, तुम लोगों को MVC पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें तुम लोगों को पता सब कुछ है, पर लिखना कहाँ पे है, वो है MySQL। तो SQL is our English language and MySQL is our Microsoft Word। So Microsoft Word will allow you to write sentence into English language, which is already predefined because I know English already। So this is the basic example and basic difference between SQL and MySQL। So that's it for today। In next video, I'm going to take the difference between relational and non-relational databases। Till then, tata।